Can you guys see my screen? दिख रहा है मेरा इंटेलिजेंट ओपन है दिख रहा है okay so yesterday what we discussed first one is like how to create a https restful service so that we can discuss it later or also I shared the video you can just do the thing it's a simple thing the last moment what we left right is that how to use the basic spring security right so I'll just explain one more time so you can catch up from here right just let me take a look who joined okay so what we did right we created one project right with using the spring boot starter security right as a dependency in pom.xml okay and simple a hello controller okay so just I created one project I'll again create another project whenever we are going for next example but to explain you what I did so it's a simple spring boot project what I'm just writing the rest controller uh, which is being there is one method which is for get mapping hello and I'm giving a response entity right object and with a string hello from basic spring security with http status okay right and here is my spring boot main application class right and here I just mentioned the server.port right in this pom.xml because of adding this spring boot status security what spring boot or spring security does it automatically actually cover all the API which is in your application right and you need some username password right to access those endpoint so if I run this as I was showing right let me restart and run this so if you can see in the log there is some using generated security password there's some password spring security has been generated so why I'm getting this password and what is the thing because again right Gauri and Snehal just take a look what we just did we just added one dependency called spring boot starter security right because of adding the dependency Spring Boot or my application, right, which is run by Spring Boot, it knows that I need to secure all the endpoint by using this password and user as a username. Okay. So after that, if I don't give any authentication, no authorization, right? If I go, it will give me the 401 unauthorized error, right? But when I give the basic authority authentication and username should be user and password should be what has been generated in that log right it will give me the result hello from basic spring security okay this is the first thing we did right now till this point it's clear right now we will go to the next level right and we will dig the spring security what is inside that and whatever the things we do clear है ये okay ठीक है अभी देखते हैं
यहाँ पे जो हमने किया है वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड एक एक लॉग से हमको पासवर्ड दिया है, और यूज़र नेम शुड बी ऑलवेज यूज़र, बट देर इज़ नो स्केलेबिलिटी, राइट? आई कांट ऑनबोर्ड मल्टीपल यूज़र, राइट? आई कांट यूज़ देयर ओन पासवर्ड, राइट? तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। आपको अगर ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पर आपको मल्टीपल यूज़र यूज़ करना, हाउ टू डू दैट थिंग, राइट? And how Spring Security, has a workflow. What are the workflow Spring Security, right? How does it, secure this all endpoint, and what are the process Spring Security does? Let's understand this, and let's go into the next level. Okay. So basically, yeah. Let's see the workflow. Okay. So workflow means what it is doing, right? So this client is assume that postman, okay? You are hitting the endpoint of that HTTP port, whatever you are hosting, right? First of all, when you add the pom.xml in your application context, or in your add the security in the pom.xml, Spring Security auto-wears its component. What are the components? It has lots of filters. If you can see, there is an authentication filter. Filter, I think you might heard anything. So anyone knows about filter? What does it? What it does? Sublet filter or anything? Any idea? No idea. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? कोई आइडिया नहीं है? ओके, ठीक है। वेरी 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 सिंपल थिंग, ठीक है। इफ यू right read about any of the Java E framework, you will understand one thing, which is filter what it does, right? So filter क्या करते हैं? आपका जो भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट को अगर कोई एंड पॉइंट जो जहाँ पे गेट मैपिंग या जहीं कहीं पे भी होस्ट हो रहे उधर पहुँचने से पहले, अगर इफ़ यू वांट टू चेक समथिंग, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, इफ़ यू वांट टू जस्ट लॉग द रिक्वेस्ट, राइट, यू कैन यूज फिल्टर, ठीक है। So there are lots of filter. You give your custom filter implementation, and उसमें filter में actually एक method होता है do filter, okay? And do filter में दो पैरामीटर होते हैं। एक होता है request और एक होता है response, ठीक है। आप ये request को लेके कुछ भी कर सकते हो। यू कैन ऐड समथिंग। रिक्वेस्ट में मैंने एक हेडर ऐड किया, ऐड हेडर, ठीक है। एंड हेडर में पहले हेडर नहीं था, सपोज ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट शुड हैव ए कोरिलेशन आईडी। आप एक एप्लीकेशन है जहाँ पे वो यूआई से अगर को कहीं से कॉल हुआ तो उसको एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी प्रोवाइड करना है। व्हाट यू विल डू, you will add one header and you will give the correlation id, right? And assume that I am giving abc, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मेथड है जैसे फिल्टर चेन डॉट डू समथिंग, मेथड में याद नहीं आ रहा है, फिल्टर चेन डॉट समथिंग। उसके बाद आप यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दे दो, ठीक है। एंड आपको बिन में ऑटो एयरिंग करके कैसे भी बोल दो कि ये फिल्टर को आप एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में ऐड कर दो, okay? That is the one thing. So what will happen when every request will come, before going to the endpoint, this request will come here first, okay? This request will come here first, right? request dot add header जो भी है, उसके बाद वो रिक्वेस्ट जाएगा अपना एंड पॉइंट को, ओके। मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, उससे दैट विल गिव यू मोर मोर सेंस। इसी प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ, दूसरा प्रोजेक्ट में नहीं जाते, ओके।
So what I'm going to write, I'm going to do a I will write one Java class. uh, I'll give the auth filter as in, ठीक है. आपको फिल्टर कैसे इम्प्लीमेंट करना है? स्प्रिंग ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यू कैन एक्सटेंड फ्रॉम देयर इम्प्लीमेंटेशन. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एक्सटेंड tnds, right? Once per request filter. If you are giving the using the once per request filter, someone join, let me accept. I think yeah, yeah, just I'm just explaining the filter, then we'll go. Okay, so ये जो है ये once per request filter has a, you have to implement one method, that's what I'm saying, that do filter internal, right? And it is giving you the method like request response and filter chain. So whatever I want to do, suppose I want to get right request dot, मैं जैसे बोल रहा था गेट हेडर कि मेरे को रिक्वेस्ट आईडी चाहिए, ठीक है. एंड assume that this is my string request id, ठीक है. और उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है. सो जस्ट आई नीड टू ओके, इधर लॉग कर देते हैं. सो लॉगर यूज़ करते हैं. सॉरी, I assume that I am using something logger, I am not going to implement it. कुछ logger यूज़ करते हैं. Then I want to pass this thing. मतलब मेरे रिक्वेस्ट में कुछ नहीं करना है, जस्ट मेरे को रिक्वेस्ट आईडी लेके इधर उसको ये करना है. देन nothing I want to do. So filter chain dot I think do filter, yes. यहाँ पे मेरे को फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को पास करना है. ओके, सो व्हाट इट विल डू एवरी, एंड ये जो फिल्टर है अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं हुआ मतलब एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में ऐड नहीं हुआ. उसको कैसे ऐड करते कैसे करता है, वी विल गो इनटू डिटेल्स, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. बट फिल्टर इज जस्ट लाइक ए कंपोनेंट, राइट, इन योर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और इन योर एप्लीकेशन. वो फिल्टर का काम होता है कि कुछ भी चीज़ को अगर ट्रेस करना है बिफोर गोइंग टू द एंड पॉइंट, यू कैन ट्रेस इट, ठीक है. So what I was explaining, that's how Spring Security work. It use one filter which is the authentication filter, ठीक है. Authentication filter को क्या करना है? Authentication filter will take the username password, ठीक है. And Spring Security will create an object that is the authentication. Okay. Now authentication object, so Spring Security define that what are the field and what are the methods should be there, right, in the authentication interface. Okay, and it has some default implementation of that interface of that authentication object. Okay, so I got the username. What I'll do, I'll create an object using those username password and create an authentication object. Then I will pass to the authentication manager. What authentication manager do? Authentication manager will use the authentication provider, okay, and authentication provider will use two things. One is the user detail service, another is password encoder. Okay, now user detail service has the all details about user, and password encoder is the utility which is being used to encode the password for each and every user. Okay, so flow will come that first it will come to authentication filter, then it will go to the authentication manager, then it go to the authentication provider. Authentication provider will use user details and password encoder, right? Then what it will do, it will, if it is if it is matches, right, it will mark that authentication object that it is being authenticated, is authenticated, done,
then it will keep that object in the security context. Okay, ये जो 8 नंबर इधर खत्म हुआ, इसके बाद जो 9th स्टेप है, दैट इज दैट if it is authenticated, then it will go to that endpoint, the gate mapping. Okay, ठीक है. So just remember this entity. First is authentication filter, second is authentication manager, third is authentication provider, and authentication provider will use the user detail service and password encoder. Okay, then after doing everything, it will just come back, right? Then all the authentication means the authentication object will mark if everything is good, if the user detail password is matching and everything, right? Then it will mark the authentication object as authenticated and it will store in the security context. Okay, ठीक है. अभी ये फ्लो जो है, ये हाई लेवल पे समझ में आया. I'll go into details each and every step. Okay, so you will get the, you know, the details of each and every step. But high level पे ये समझ में आया. कुछ क्वेश्चन है? समझ में आया? ओके, ठीक है. अब ये काम करते धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं. सो पहले देखते हैं सो हाउ स्प्रिंग सिक्योरिटी काम करता है. वो बोलता है कि तुम कोई भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन तुम जो करना चाहते हो वो इम्प्लीमेंटेशन दे दो, बाकी मैं संभाल लूँगा. राइट. सो यू डोंट वांट टू गिव द, यू डोंट अंडरस्टैंड द ऑथेंटिकेशन फिल्टर, तो छोड़ो. ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, राइट, it has a default implementation, right, for each and every step. मेरे को सिर्फ यूज़र डिटेल संभालना है कि आई हैव ए यूज़र डिटेल्स. ठीक है, मैं यूज़र डिटेल्स से संभालूंगा. ठीक है, एंड पासवर्ड एनकोडर आई नीड टू गिव. बाकी सब स्प्रिंग संभालेगा. सो यू जस्ट नाउ डू ए प्रोजेक्ट where we will do all the, give all the user details, right, with the password, so that multiple user can log in, can use the endpoint, actually can get the access of this endpoint. ठीक है. So let's do some, create some new module. Okay, so मेरे को इनिशियलाइजर जाना पड़ेगा, बट यू कैन डू राइट योर ओन फ्रॉम दिस, राइट, न्यू मॉड्यूल करके. बट एज माई सिस्टम इज नॉट वर्किंग. अच्छा, स्नेहल एंड गौरी, you know, right, how to create a new project in IntelliJ, or whatever the tool you are using, Eclipse. Okay, ठीक है. Eclipse में एक नया प्रोजेक्ट स्प्रिंग असिस्टेंस यूज करके कैसे बनाता है? हैव यू वर्क ऑन दिस? नहीं तो आप एक को मैं एक चीज दिखाता हूँ. सो गो टू दैट start.spring.io. okay, project should be Maven project, language should be Java, Spring Boot should be 2.6.0, and you need to give the project metadata. So I am giving a sample thing, Photon. An artifact ID, I will do Spring security with custom user details, UD. And give the package name as Spring security with custom user details. Java version is 8. Now I need to add the dependency. So I will add 2 dependency only, Spring Web for a RESTful thing and Spring security. Where is the security? Okay, then I'll generate my project. It will be directly downloaded. So in the IntelliJ, as of now, what we are doing, we are using a multi-module project. Right, multi-module project is very simple.
But if you are still not able to do the, but you can do the individual project because in Eclipse you can see lots, I mean, all the project in the same window, right? So you can create a new project in Eclipse, right? So अभी क्या करना है, इसको कॉपी करके paste. Okay, let's do the coding. I'll wait, right, till everyone is in at this stage. ठीक है, जब हो जाएगा बोलना मेरे को, ठीक है? I'll just wait. If you're not able to write, I'll just share this pom.xml in Notepad plus link also I need to share. Okay. This is the notepad. You will, whatever I write here, you will get. You will go to the link. Right, so this is the form.xml. You can, if you want to do, you can change. Nothing you need to change. I think everything is fine. Let me know once we were done. Okay.
हो गया? इधर तक आ गया? समरेश, रातुल, यू कैन पिंग मी. अजिंका, गौरी, टेक योर टाइम. अच्छा, रातुल हो गया, ग्रेट. गौरी, any problem you are facing? Okay, take your time. Samresh. Oh yeah. So whatever you can do with that, just create one package controller.
inside that controller, at least first give a controller and write our controller. Responsibility. I need to write REST controller here and just write request mapping. In the application of properties, I use new server port, that is 5003. Till now everything is good, right? कुछ नहीं किया, एक ही सेम चीज़ किया जो हमारा बेसिक जो था स्प्रिंग सिक्योरिटी हुई है, राइट? कैन आई गो हेड नाउ? ओके, अभी देखते क्या क्या करते हैं। तो हमने क्या बोला कि ये जो स्टेप्स अभी एक्सप्लेन किया था, राइट? ईच एंड एवरी स्टेप, आवर मेन टारगेट इज टू गो टू ईच एंड एवरी स्टेप, right? So first of all, we are not going to do for this example, we are not going to do authentication filter, authentication manager, authentication provider. We are just going to give the implementation of user detail service and password encoder. Okay, now let's see how to do this thing, right? एक ही यूज़र पहले लॉगिन कर सकता था, अभी बहुत सारे यूज़र को हम देने वाले हैं, राइट? सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन पैकेज दैट इज़ द config. तो ये सारे config एक जगह पे रहेगा। config में मैं जाके एक नया जावा क्लास बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा सिक्योरिटी config. ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू गिविंग द इम्प्लीमेंटेशन टू द यूजर डिटेल्स, अभी ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि हाउ यूजर डिटेल सर्विस is present and basically what is the responsibility of user detail service, how I can implement. So कोई भी अगर आप एप्लीकेशन में जाते हो, सो हर एक एप्लीकेशन क्या करता है कि टू डिफाइन यू नो to define something which you can implement yourself, so they write the interface, right? Yes or no? You write the interface, right? In the interface you just give the contract कि ये interface में ये method है, आपको अगर कुछ करना है तो ये method के implementation देना है, yes or no? है ना? So yes, आप कोई भी रेपोजिटरी में जाओ या कोई भी सर्विस में जाओ, आप पहले क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर देते हो कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे मेथड्स हैं, ये मेथड के इम्प्लीमेंटेशन मैं इस मेथड में करूँगा, ठीक है? ऐसे ही स्प्रिंग सिक्योरिटी भी दो चीज़ का उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है।
First contract is user details, right? So if you can see, it is an interface. User details is an interface, and second is user details service. फर्स्ट इज यूजर डिटेल्स सर्विस, ठीक है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हमको देना पड़ेगा, एंड इफ वी हैव एनीथिंग द डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन और नॉट। लेट्स फर्स्ट गो इनसाइड दैट यूजर डिटेल्स। यूजर डिटेल्स में वो क्या बोल रहा है कि आप कुछ भी करो, जस्ट इम्प्लीमेंट दिस 1 2 3 4 5 6 मेथड, okay. First is get password, second is get username, third is account not expired, fourth is account not locked, fifth is credential not expired, and sixth is enabled, okay. So whenever I am going to add a new user, I need to use this contract, right, so that Spring Security will accept that, okay. How to do this thing, I'll come later. Let's go in the user details service. In the user details service, it has only one method. What is that? Load user by username. So user details service internally, whatever you want to implement, Spring don't care about it. Spring will only see the implementation of that load user by username. So what is the expectation? It will call this method, right? It will call this method with whatever username you have given during the authentication, and you should return the details of that user. Clear है? सही है, right? ठीक है। अभी जाते हैं इसमें, हम दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू इम्प्लीमेंट, मतलब ये आपके पास मतलब यू कैन implement your you can keep all the user details in a database. We will go into that phase. In a database you can store all the user details, then आप उस user details को जब database से fetch करके उसका object बनाओगे, उसको ऑब्जेक्ट को आप यूज़र डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट जैसा ऑब्जेक्ट बनाओगे। सो यू आर जस्ट यूजिंग वन कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑब्जेक्ट, राइट, सिक्योरिटी यूज़र implement user details, and you just give all the right implementation of that class. After that, whenever your user detail service is there, load by username, what you will call, you will call that database and get the details of the user, create the user details of it, and give back to the Spring Security so that it can use. As of now, we are just hard coding the thing, but we will go into that also, okay. अभी क्या करना है, देखो अभी मैं क्या करता हूँ। So you know, if you are giving implementation also, I'll give this, right, this dependency means I'll just inform Spring Security that okay, I am creating the user details service, and add it into your Spring context or application context, right, whenever you are running. So how to do this thing? I need to create a bin. If I right, annotate one bin, right, then it will be already added in the application context. How to add the bin? First of all, on the class level you need to write configuration, so that Spring will search this class, and whenever you are writing a bin, so you should give the response of a user detail service, right, user detail service. Here I need to return some user detail service, and here I'll just read bin. Whatever in this method, I need to add all the user and package it and give the user detail service. That's all. Now, how to create a user, right? That is the one thing. Spring also help you. Suppose you want to do the in memory. In memory means you have the username, password. You just want to create a user without going to any database. How you can do? Spring say, okay, I have a builder class. What is that? So assume that I am using first user details. So what you need to do? User dot, okay, what,
user.username. Assume that I am giving, give me one name, Samresh. Then you can give password. What password I'll give? 12345. Then if you have one more thing, user will by default what we are going to do as of now, don't think about it, but by default we are giving authorities of the user, right? So assume that this user is having read authority. Okay, then I'll use build. Okay, so what it will create, it will create a user details object, and this is the user details is done. Now what I need to do, I need to create one user details service also. Does Spring support anything? Yes, Spring has something. So what Spring has, it says okay, I have one implementation that its name is in memory user details manager. Okay, what you need to do, you need to add the user to this service. In memory user details manager. No. Oh, sorry. Create user. Okay. Done. और कुछ नहीं करना है आपको, ये समझ में है दिस 4 lines of code. First what I'm doing, I'm creating a user details object, right? I'm creating a user details service object, or you can think of a, yeah, instance of it, right? This is in memory user details manager is a Spring default, so you can use it, right? And what you need to do, you need to add the user inside that user details service. So whenever Spring will call the load by username of this user details service, it will give the these are the details, right? Okay, cool. समझ में आया? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, क्योंकि ये बेसिक है, ये इसके ऊपर और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा. सो जस्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, वन इज द यूजर डिटेल्स एंड यूजर डिटेल सर्विस. इज मतलब हम लोग इसका डिटेल्स में जाएंगे. यू कैन इम्प्लीमेंट योर ओन यूजर डिटेल्स, सो वी विल गो इनटू दैट फेज, बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट शोइंग दैट Spring has some default in memory, you can use those. Of exactly, if you go inside that in memory user details manager, it's a class, it's not an interface. It uses, actually it gives the implementation of user details manager, user detail password service. Now these are the this is a interface, but if you come here, this internally use the user detail service. So you got the point. So in memory user details manager, implement user details manager, and also you implement user detail password service, right? Internally, what I need a something which is implementing user detail service, and in memory user details manager is implementing user details manager, which is internally implementing the user detail service. So ideally, this in memory user details manager is implementing user detail service. But what
what in-memory user detail manager is giving us the flexibility that it not only has the load by username implementation, but it has the create user implementation. All the user you can manage here. So if you go inside that user details manager, this user detail service का तो एक मेथड है ही load by username. Also this user details manager is having create user, update user, delete user, change password, user exist or not, and we are just using the create user method to add the user in this manager. ठीक है, पूरा क्लियर है? ओके, अंजलि, गौरी, स्नेहल, समरेश, रातुल, ऑल क्लियर? ठीक है, अभी अगर हम रन करेंगे तो इट विल, मतलब इट विल ड्यूरिंग द रन इट विल फेल. ओके, आई कैन शो यू इट विल फेल. व्हाई? बिकॉज स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट उसको यूजर डिटेल के साथ और एक इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, दैट इज पासवर्ड एनकोडर. विदाउट दैट इट विल नॉट, इट विल जस्ट लुक फॉर द पासवर्ड एनकोडर इन योर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट. उसका कुछ बिन नहीं है तो फेल कर देगा. But I don't want to encode my password. I want to use the simple password. There are lots of password encoder. ठीक है. So password encoder का डिटेल्स में हम बाद में जाते हैं. अभी के लिए एक काम करते हैं, एक मतलब एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एनकोडर है, राइट. सो दैट इज़ पब्लिक. मैं यहाँ पे पासवर्ड एनकोडर का एक इम्प्लीमेंटेशन बनाता हूँ, राइट. सो देयर इज समथिंग कॉल नो ऑफ पासवर्ड एनकोडर, don't get instance. So basically what it does, it doesn't do anything. ठीक है, ये सिंपल है. ये इनकोड भी नहीं करता है, डेटाबेस में इसी को स्टोर कर देते हैं. बट एटलीस्ट स्प्रिंग को ये पासवर्ड एनकोडर मिल गया. ओके, ठीक है, हो गया. कैन आई रन दिस प्रोग्राम नाउ? फॉर योर just copy this code. Okay, let's first run this, then I'll copy the code. If something goes wrong then I need to change it, right? ठीक है, रन करो इसको एक बार, देखते हैं क्या होता है. समरेश को लॉगिन करने देते हैं कि नहीं. ओके, जब आपने ये यूज़ किया हैव, ये जो लॉग में देखो एक चेंज हुआ, लॉग में कहीं तो पासवर्ड डिस्प्ले नहीं किया, क्योंकि उसको पता चल गया कि अभी मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र डिटेल सर्विस एंड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एनकोडर आई कांट यूज़. जो जो हमारा जो यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ गिविंग देयर कस्टम इम्प्लीमेंटेशन. दैट्स व्हाट आई शुड नॉट टेक केयर अबाउट दोज थिंग्स. ओके, फाइन. नाउ आई विल जस्ट शो यू दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, राइट. आई नीड टू चेंज द पोर्ट. ठीक है, अभी मैं नो ऑथ से जाता हूँ. इट विल गिव मी 401 unauthorized. What is the username password I need to use? I need to use basic auth and I need to use one two three four five. Okay, let's see. I got the response, hello from Spring Security from custom UD. Clear है? You can use as many as user details here. ठीक है, okay. Now let's code this. चलिए इसको कोड करते हैं. I'll just give you the code, you can take it. Or in IntelliJ, sorry, I need to give the import statement also.
क्वाइट सिंपल है राइट. एनीथिंग मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है. Let's complete the code, then we will talk. Okay. If you are agree, so can I go ahead? अनऑथराइज्ड आएगा ना. अनऑथराइज्ड नहीं, उसमें देखो एक्सेप्शन आएगा, उसमें बोलेगा कि नो पासवर्ड एनकोडर इज रिंग. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि स्प्रिंग सिक्योरिटी वो क्या करता है लेवल पे अपना मतलब उसको ये चीज़ चाहिए. सो इफ़ यू आर गिविंग द यूज़र डिटेल्स यू शुड एटलीस्ट गिव द पासवर्ड एनकोडर. इफ़ यू डोंट गिव इट विल गिव यू द एरर. आइदर कुछ मत दो, इट विल क्रिएट इट्स ओन यूज़र पासवर्ड. अगर यूज़र डिटेल्स देते हो तो पासवर्ड एनकोडर भी देना पड़ेगा. ओके अभी हमने यूज़ नहीं कर रहे बट वी विल यूज़ द आवर ओन पासवर्ड एनकोडर लेटर. ओके
ठीक है, चीज़ समझ में आ गया ना, पूरा यूज़र डिटेल्स। अभी इसको एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, ये थोड़ा डेटाबेस की तरफ देखते हैं कि इट इज़ नॉट एक्चुअली नॉट फिजिबल फॉर एनी प्रोजेक्ट, राइट। आप प्रोजेक्ट में अगर ये यूज़ करना चाहते हो तो कोई हर एक यूज़र को एक एक दिन कोड डालोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो वी नीड समथिंग like that all the user details will be stored in a database. We are just, we will just get that user details and we can authenticate. Yes or no, right? That will be more feasible, right? तो हम डेटाबेस की तरफ जाते हैं। क्या बोलते हो? ठीक है, भाई डेटाबेस है तो डेटाबेस चाहिए ना, डेटाबेस कहाँ से मिलेगा? सबकी सिस्टम में डेटाबेस है? नहीं है? ओके, तो स्प्रिंग हैज समथिंग फॉर यू, स्प्रिंग गिव यू एवरीथिंग, राइट। तो बाहर से कुछ नहीं लेना है। स्प्रिंग में एक H2 डेटाबेस होता है जो इन मेमोरी डेटाबेस होता है। यू कैन यूज द डेटाबेस फॉर योर ओन पर्पस। नाउ उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास उसको एक पाथ देना पड़ता है कि आप जितना भी डेटा है वो आप इस फाइल में लोड कर दो, इसी फाइल से लोड करके आप डेटा को एज अ डेटाबेस मान सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट जो ये है उसका सब कुछ, राइट, आई विल शेयर एवरीथिंग कोड, बट इफ यू फेस एनी challenges then you can take the code later, but just observe what I'm doing, because here what I'm going to do, I will use the in memory database, right. Then I'll show you how you can store your user details in a tables and you can use it in the user detail service. Okay, करते हैं। So I'll again come into the Spring initializer. I'll just with you Spring security with uh, JDBC JDBC data, uh, JDBC user details। ठीक है, ऐसा नाम देता है कि JDBC से हम लेंगे। So I'll give the package name the shorthand SS Spring security with JDBC user। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, हमको ऐड करना है दो चीज़, एक करता है H2 डेटाबेस, और ऐड करना है क्या, हमको ऐड करना है JDBC स्प्रिंग डाटा JDBC। ठीक है, ये दोनों से काम चल जाएगा। ओके, आई विल जनरेट द प्रोजेक्ट। ठीक है, सो H2 हैज़ राइट समथिंग, वो उसमें क्या है कि आप सारे कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो, राइट। दैट आपको कौन सा फाइल में चाहिए, उसमें अगर डेटाबेस है तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या होना चाहिए, एवरीथिंग यू कैन गिव, राइट। So there should not be any issue, but I'll just few things we need to do, I'll let you know what we need to do। ठीक, अभी इसको मैं मॉड्यूल में ऐड कर लूँ। Now what I'll do, मेरे यहाँ पे जो दो पैकेज था उसी दोनों पैकेज को पहले कॉपी करते हैं, देन we'll do the modification of this। okay, config and controller, मैं कॉपी करके इधर सीधा पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कंट्रोलर में मैं चेंज कर दूंगा फ्रॉम JDBC DS, समझ लो डेटा सोर्स, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में यूज़र डिटेल सर्विस है, राइट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारे पास टेबल्स होना चाहिए, राइट। डेटाबेस में टेबल्स होना चाहिए और डेटाबेस का सारे कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, राइट। सो हियर व्हाट आई विल डू, सर्वर डॉट पोर्ट 50004,
ओके। सो मैंने थोड़ा बहुत इधर स्मार्टनेस का काम किया। मैंने सारे जो भी डेटाबेस का डिटेल्स या जो भी डेटाबेस का डिटेल्स है, जस्ट kept it here. So so what I will do whenever this H2 database will be run, it needs the initial data कि मेरे को टेबल चाहिए, ये चाहिए। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि आप रिसोर्स फोल्डर में एक फाइल बना दो जिसका नाम दो schema डॉट एसक्यूएल। उसमें आप सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट दे दो जो जो आपको रन करना है, ठीक है। So these are my SQL statement. It's very simple. Everyone knows, right? So if you can take a look, देखो, create table if not exist user id is equal to identity because this will be the identity column in H2 database। identity मतलब automatically वो एक big int बनाता है, big integer बनाता है और उसको increment करते हैं। not null, this is the username, this is the password। और enable करके एक ये है जो integer होता है 0 और 1, ठीक है। और यहाँ पे authorities जो है, I'm creating another table. There is authorities ID, username, authority. Authority will be a string and the primary key will be ID, right? I'm creating two user. One is Sumit, second is Amit, and Sumit and Amit. So I can change the name as you want. Here I am giving that 12345 12345. Both has a read access. ठीक है, ये simple authority है, simple table है, no complexity, ठीक है। अभी ये मैं रन करूँगा, सो आई नीड टू गेट द डेटाबेस डिटेल्स ऑल्सो। मेरे को ऐसा डेटाबेस दिखना चाहिए, राइट, कहाँ पे ये टेबल बना, क्या चीज़ है। तो उसके लिए H2 का कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो H2 का कॉन्फ़िगरेशन इज दिस आर द H2 कॉन्फ़िगरेशन। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन, राइट, बट इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी मत सोचो, इट्स सिंपल थिंग। कोई भी स्प्रिंग डेटा सोर्स अगर यूज़ करते हो, सो यू गिव दैट URL, राइट। हियर व्हाट आई एम गिविंग JDBC कोलोन, इसके बाद आपको कोई भी डेटाबेस, अगर MySQL है तो MySQL देना पड़ता है, Postgres है तो Postgres देना पड़ता है। यहाँ पे H2 है, उसके बाद आपको URL कुछ देना पड़ता है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि फाइल से उठाओ, एंड फाइल कहाँ पड़ा है, सो सोर्स मेन DB जो मेन मेरा सोर्स है, एंड DB के बाद इसका नाम दे देता हूँ यूज़र DB, ठीक है। और डेटाबेस ड्राइवर क्लास H2 ड्राइवर, पासवर्ड यूज़र नेम ऐसे, पासवर्ड कुछ नहीं दिया मैंने। स्प्रिंग JPA डेटाबेस प्लेटफॉर्म इज H2 डायलेक्ट। जो भी आपका SQL होगा, ये इसका डायलेक्ट H2 का डायलेक्ट होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है सबके लिए, आप दूसरा कुछ डायलेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। एंड स्प्रिंग H2 कंसोल पाथ इज /H2 hyphen console। what does it mean? You can see the database using this URL, and spring data source initialization mode is always। so I am saying कि आपको हमेशा initialization करना है, मतलब schema.sql को आप हमेशा रन करो, right, so that everyone can understand what is happening, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ करता हूँ, सो दिस आर द कॉन्फ़िगरेशन यू नीड, राइट। आपने schema.sql में सारे डेटाबेस दे दिया, application.properties में सारे प्रॉपर्टीज दे दिया, आपका pom.xml में JDBC H2 है, राइट। सो स्प्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, H2 का डिटेल्स लेके उसका एक डेटा सोर्स का एक यू कैन थिंक डेटा सोर्स का एक बीन वो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में बना देता है, ठीक है। इट डज बाय स्प्रिंग, राइट। सो व्हाट आई नीड टू डू हियर व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट मैं सब कुछ जस्ट आई नीड टू गिव रिटर्न JDBC user details manager, okay। so new, okay, हमको डेटा सोर्स देना है। सो व्हाट आई विल डू, आई नो दैट स्प्रिंग ऑलरेडी हैज़ अ बीन ऑफ डेटा सोर्स which is belongs to that H2। just give the data source here, done।
sorry, it has the bin, so I need to auto add. ठीक है, हाई लेवल पे समझ में आया ये चीज़? जस्ट से यस, इफ नो नो से नो, यस. If you feel complexity or if you feel that how would do the database, simple database को हमने यहाँ पे in memory configure किया. It might be difficult, but go to your organization. If you in your organization there will be tables, right? आपको सिर्फ ये चीज़ देना पड़ता है, data source का URL, password, right, username, and आपको create करना पड़ता है. यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि how this JDBC source know कि उसी टेबल को मेरे को ढूंढना है. दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आई विल आंसर दिस थिंग. और जो क्वेरी है, क्वेरी कहाँ मिलता है? इट हैज़ ऑल द क्वेरी. ठीक है, और इस क्वेरी के हिसाब से ही मैंने जो डेटाबेस बनाया उसी क्वेरी के हिसाब से बनाया. आई विल शो यू द क्वेरीज. So let's see. Find, select ID from select username from user or username, then select authorities from username. Okay, if you want to give your custom SQL, you can also give it. मैं दिखाता हूँ कैसे देते हैं. JDBC user detail manager, JDBC user details manager is equal to new JDBC user details manager. Sorry, what is the data source here? उसके बाद you can give your own implementation of, if you can see, set create user, select user कहीं पे लिखा है. Yes. Authorities by username query. You can give your query here if you are using some another name or another table. By default it will take these two table. One is authorities and उसके बाद और एक होता है JDBC user details dot set. There is something, user exist SQL, I believe this one. ठीक है, you can just give a user exist SQL. ठीक है, ये दोनों SQL आप दे दो, it will auto configure everything. ठीक है, बट अभी हमने उतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे. हमने JDBC का ये स्टैंडर्ड उसका टेबल्स है, इसमें आप अगर डेटा डालोगे, इफ़ यू रन दिस इट शुड टेक ऑल द यूज़र. ओके, कैन वी गो एंड रन दिस? देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है. राइट,
Done. 5004, right? Now what I'll try, I will try सुमित. पहले नोट से देखते हैं क्या होता है. 401 मेशिकॉट सुमित 12345. ठीक है, देखते हैं. इट इज कमिंग. हेलो फ्रॉम स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्रॉम JTBC DS. क्लियर है? सो यू कैन यूज योर डेटा सोर्स राइट इन द यूजर. ठीक है. आप किसी ये कोड करना है, देन आई कैन गिव ऑल दिस डिटेल्स. लेट मी गिव यू. दिस इज द schema.sql. दिस इज द schema.sql. आपको सिर्फ schema.sql उधर ऐड करना है. या बोलो. हाँ एग्जैक्टली जितना बार रन करोगे उतना बच्चा उसको थोड़ा मॉडिफाई करिए. तो इनिशियल है ना, मतलब ये अब मैं और एक चीज़ राइट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा कि अभी अगर किसी को ये मन में शक है कि डेटाबेस कहाँ है, टेबल्स कहाँ है, राइट, कहाँ छुपा हुआ है. सो आई जस्ट अभी मैं नहीं दिखा सकता बट आई शो यू, डेफिनेटली आई शो यू. और इसमें क्यों नहीं दिखा सकता वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो बेसिकली लेट मी फर्स्ट गिव दिस टू यू. दिस इज द सर्वर पोर्ट. ठीक है. अभी लेट्स गो हियर, लेट्स सी जो मैं जो बोला था वो फाइल बना कि नहीं बना. ठीक है. ये देखिए यूजर db md.db, ये जो फाइल है इस फाइल को यूज़ करता है. सो बेसिकली व्हेन एवर H2 अगर मतलब एप्लीकेशन डाई हो गया, बंद कर दे, उसके बाद एप्लीकेशन को फिर से आप करोगे तो उसके पास सारे डेटाबेस का डेटा इधर पड़ा हुआ, वो इसको लोड कर लेगा फिर से. सो समित अमित ऑलरेडी इंसर्टेड एंड इट विल बी इंसर्टेड राइट whenever you are using this file. ओके. नाउ अभी एक्चुअली आप डेटाबेस देख भी सकते हो, अभी नहीं देख सकते हो बट देख सकते हो. कैसे देख सकते हो मैं बताता हूँ. सो यू नीड टू गो टू लोकल होस्ट colon 5004 and I gave one thing h2 hyphen console. ठीक है. ये शायद अभी नहीं चलेगा, इसका कारण मैं बताता हूँ. बेसिकली या इट विल गिव मी द लॉगिन. मैं लॉगिन करूँगा तो इट विल आस्क मी द लॉगिन अमित 12345. क्लोज. लेट्स सी. इट इज सेइंग मी कि तुम सारे डिटेल्स दो, मैं तुमको डेटा दिखाता हूँ. बट मेरा गार्ड फीलिंग बोल रही है नहीं चलेगा. यूज़र नेम ऐसे, पासवर्ड कुछ नहीं है. कनेक्शन टेस्ट करूँगा तो एरर आ गया. ठीक है. वाई दिस एरर इज कमिंग. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ऑथेंटिकेट किया, क्यों ऑथेंटिकेट किया, क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट सबको सिक्योर कर देते हैं, उसको किसी को घुसने नहीं देगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, स्प्रिंग सिक्योरिटी हैज़ ए CSRF फिल्टर मतलब ऐसा है कि आप कोई भी पोस्ट मेथड कॉल नहीं कर सकते हो. ओके. तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को आपको बोलना पड़ेगा कि यार तुम अलाउ करो इसको. ठीक है. वो हम कैसे बोल सकते हैं. I'll do the thing, I'll show you, but don't get confused. I'll explain this thing later because this is one of the most important thing. स्प्रिंग सिक्योरिटी के साथ थोड़ा बात करना है. इसके लिए आपको एक एक्सटेंड देना है जिसका नाम है वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर एडाप्टर. मैं वेब सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ और इसमें इसका एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगर HTTP रिक्वेस्ट को. कैसे कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे मेरे को बोलना पड़ेगा HTTP डॉट, मेरे को बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा जो CSRF फिल्टर है उसको अभी के लिए डिसेबल करके रखो. एंड ऑल्सो आई नीड टू से
कि जो भी ये इस टाइप ऑफ एप्लीकेशन है इसके लिए हेडर को फ्रेम ऑप्शन को डिसेबल करो, सो आई कैन एटलीस्ट सी द एंड हियर आई नीड टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नथिंग एल्स। अभी मैं इसको रीरन करूँगा, देन यू विल एबल टू सी द डेटाबेसेस। लेट मी रीरन दिस। आई थिंक इट विल फेल बिकॉज इंसर्ट 2 बार चलेगा। यस, देखते हैं, नहीं भी हो सकता है, शायद सुमित अमित 2-3 बार हो जाए, बट शायद एप्लीकेशन फेल नहीं होगा। लेट्स सी। एप्लीकेशन फेल नहीं हुआ, सही है। अभी ट्राई करते हैं H2 कंसोल में कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। सो आई राइट, आई स्टार्ट इन फ्रेश लोकल होस्ट 50004 H2 कंसोल कनेक्ट, क्या बोल रहे हैं, इसका नाम देते यूजर टीपी। Can you see there are 2 tables has been created, one is authorities. If I run the command I can see there are 4 things because 2 बार insert query चला, और if I again run this user, so हमारे पास 4 एंट्री हो गया। अभी यहाँ पे आप एडिट करके ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं एक सुमित एक अमित को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अथॉरिटीज़ में जाके, और मैं अथॉरिटीज़ में जाके क्लियर है? एनी क्वेश्चन? दिखा? H2 पहले कोई किसी ने यूज़ किया था H2 का भी? सो यू गॉट वन सोर्स राइट। आपको अगर कहीं पे कुछ क्विकली डेटाबेस के साथ टेस्ट करना है, आप H2 यूज़ कर लो। यहाँ पे कोई डेटाबेस कुछ नहीं है, नथिंग, इन मेमोरी डेटाबेस है, राइट। इसके लिए मत सोचो, इसके लिए मत सोचो, ये हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी तक हमारा जो टारगेट था कि यूज़र डिटेल्स एंड पासवर्ड एनकोडर, ये दोनों सर्विस को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो इज इट क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है? Anything you want to, anyone want to ask? अब ये काम करते हैं, ठीक है, फॉर आई थिंक अभी किसी को 9:30 में ही स्टॉप करना है, कुछ किसी का हार्ड स्टॉप है कि 9:45 तक चलेगा, फिर मैं और एक चीज़ दिखा दूंगा। यस नो चलेगा क्या? ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी आप ये लेके ना कुछ भी कर सकते हैं, मतलब यू कैन प्ले विथ इट सिंपल। सो वी विल जस्ट डू वन मोर थिंग, कि इसमें जो मैंने यूज़र डिटेल्स यूज़ किया स्प्रिंग का, आई विल नॉट यूज़ द यूज़र डिटेल्स, राइट। आई वांट टू इम्प्लीमेंट द यूज़र डिटेल्स। ठीक है, मैं यूज़र डिटेल्स इम्प्लीमेंट करूँगा, ओके। बट what is the problem with this? So let me give you the idea. Assume that मैं एक काम करता हूँ, just what I'll do, I'll create a package, and package में मैं लिखूँगा मॉडल,
ठीक है, क्योंकि जो भी यूज़र डिटेल्स होगा दैट विल बी माई मॉडल। ठीक है, अभी इसमें मैं क्या करूँगा, सिक्योरिटी यूज़र करके क्लास बनाऊंगा एंड आई वांट टू गिव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिक्योरिटी, मतलब यूज़र डिटेल्स, उसका नाम है सिक्योरिटी यूज़र। ठीक है, अभी मैं यूज़र डिटेल्स करूँगा तो मेरे को सारे इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अभी सारे इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा तो ये सब को ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लॉगिन नहीं करने देगा। इसमें जो अगर मीनिंग समझोगे तो इस क्रेडेंशियल नॉट एक्सपायर्ड, इस फॉल्स हो गया मतलब क्रेडेंशियल एक्सपायर हो गया, तो ये सबको ट्रू करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आई शुड हैव ये गेट ऑथोरिटीज़, मेरे को कुछ ऑथोरिटीज़ देना है एंड दिस शुड बी द ग्रांटेड ऑथोरिटीज। ठीक है, अब it should extend the granted authority, it's another contact but it's very simple. It is having a string that it should give a get authority, मतलब granted authority is a class, मतलब आपको इम्प्लीमेंट अगर करना है तो ये क्लास का इम्प्लीमेंट करो जिसमें सिर्फ एक गेट ऑथोरिटी मेथड होना चाहिए, उसमें स्ट्रिंग वापस आएगा अगर रीड है राइट है जो भी है। एंड हियर व्हाट वी आर सेइंग कि कोई भी यूज़र में मल्टीपल ऑथोरिटीज़ हो सकते हैं। सो यूज़र डिटेल्स इज सेइंग कि आपको अगर इम्प्लीमेंट करना है मल्टीपल ऑथोरिटीज़, ये आप कर सकते हो। अभी तक हमने एक ही ऑथोरिटीज़ को इम्प्लीमेंट किया, दो दो जगह पे हमने रीड यूज़ किया। सो लेट्स नॉट गो इनटू कॉम्प्लेक्सिटी कि आपको एक यूज़र पे मल्टीपल ऑथोरिटीज़ अभी इम्प्लीमेंट करना है। हम एक ही को अभी फोकस करते हैं। विल कम राइट विद द मल्टीपल ऑथोरिटीज़ व्हेन वी नीड। ओके, अभी क्या करना है, अभी सिक्योरिटी यूज़र इम्प्लीमेंट यूज़र डिटेल्स। अभी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, सिक्योरिटी यूज़र को, सिक्योरिटी यूज़र का दो बना सकते हैं, राइट। सो इट्स लाइक दैट हम प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, अगर ऑथोरिटी भी चाहिए तो ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथोरिटी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, गेट पासवर्ड में हम ये करेंगे दिस डॉट पासवर्ड, दिस डॉट यूज़र नेम, सॉरी 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 सॉरी, दिस डॉट, ये ऑथोरिटी है, यूज़र नेम पहले देते हैं, दिस डॉट यूज़र नेम। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट देना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज array, sorry, array as list। हम यहाँ पे इसका एक इम्प्लीमेंटेशन है, सिंपल ग्रांटेड ऑथोरिटी इज इक्वल टू रीड, sorry simple granted authority, and I will give that here, what I will give the authority। ठीक है, अभी देखो मेरा हर एक यूज़र के लिए यूज़र नेम पासवर्ड ऑथोरिटी है एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग यूज़र डिटेल्स। सो दिस इज द यूज़र डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट आई एम अलाइंड विथ। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? यस और नो, क्लियर है कभी? इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी लेट मी नो, राइट। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। बार बार मैं बोल रहा हूँ एंड अगर किसी को बहुत मतलब यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट, वी कैन रिपीट इट, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग, राइट। सो अभी कैसा है कि मेरे को सिक्योरिटी यूज़र, तो मैं अभी क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ creating this using this user with name password, I can use the security user because security user has the same implementation, right? And
also let me give you one more thing, sorry. So security यूजर डिटेल्स हो गया. अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इसको अगर इसको कुछ कंस्ट्रक्टर देना है, राइट, सो दैट आई कैन जस्ट गिव समथिंग. सो आई विल ऐड वन कंस्ट्रक्टर, generate constructor, all argument constructor. ठीक है, दैट्स ऑल, लीव इट. सिक्योरिटी यूजर मैन मॉडल बन गया. अभी मेरे को एक यूजर डिटेल सर्विस को भी इम्प्लीमेंट करना है, राइट. सो आई विल गिव ए इनसाइड दैट config ही देते हैं, क्योंकि यूजर डिटेल सर्विस विल बी config यूजर डिटेल्स सर्विस, और इसका नाम मैं देता हूँ कस्टम यूजर डिटेल सर्विस. ठीक है, इट शुड इम्प्लीमेंट यूजर डिटेल सर्विस. ठीक है, अभी इसको देना है, तो इट शुड इम्प्लीमेंट द मेथड दैट इज द लोड यूजर बाय यूजर नेम. ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि कस्टम यूजर डिटेल्स में नाम गलत है, रुक जाओ, करेक्ट कर लेते हैं. रिफैक्टर रीनेम, अभी मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि मेरा एक यूज़र डिटेल सर्विस जो भी है, दैट शुड गिव दैट यूजर लोड बाय यूज़र नेम. बट इसको सारे यूज़र कहाँ से मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक काम करता हूँ, लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट ऑफ समथिंग, सॉरी, लिस्ट ऑफ समथिंग विच एक्सटेंड यूज़र डिटेल्स. ठीक है, उसका नाम देता हूँ यूज़र स्टोर. इफ यू नॉट गेटिंग द पॉइंट, मैं ये कर रहा हूँ अभी कि इसी क्लास के अंदर मैं एक लिस्ट में रखूँगा, और जो भी कभी भी ये कॉल आएगा, सो आई विल रिटर्न फ्रॉम दिस लिस्ट. ठीक है, when I do the complete implementation you will understand what we are going to do. और इसमें मैं कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर दूंगा, so that anyone can getter setter and construct generate getter setter. ठीक है, अभी लोड यूजर में यूजर नेम में मैं क्या करूंगा, बिकॉज आई हैव द यूजर स्टोर डॉट, अभी मेरे को यहाँ से ढूंढना है, राइट. मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ, यूजर नेम में यूजर नेम के साथ मैच करना है. सो हाउ कैन आई फाइंड इट, आई विल यूज द stream API, stream dot find filter, not find filter. क्या फिल्टर करना है, जो भी यूज़र नेम दिया है, सॉरी, जो भी हमारे पास यूज़र स्टोर के अंदर क्या रहेगा, यूज़र रहेगा, यूज़र हुज यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम इक्वल जो यूज़र नेम आया, एंड ऐसा करके फाइंड फर्स्ट. इट विल गिव द ऑप्शनल, ऑप्शनल से ऑब्जेक्ट निकलना है तो गेट देना है. ठीक है, ये किसी को कॉम्प्लेक्स लगा, ये लग सकता है कि एक लाइन में आपने पूरा क्या क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया, लग सकता है, बट आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन लाइन. ओके, ठीक है, ये मैं बोलूँ क्या, ये लाइन को एक्सप्लेन करूँ. ओके, सो आपके पास क्या है, एक यूज़र स्टोर है, उसमें क्या है, बहुत सारे यूज़र है, यूज़र डिटेल्स है, राइट. ये सुनो, लिस्ट ऑफ यूज़र डिटेल्स है आपके पास, राइट. ना आपसे वहाँ से ये चीज़ करना है कि यूज़र डिटेल्स से एक यूज़र को ढूंढ के निकलना है जिसके साथ नाम के साथ मैच होता है. तो आप क्या करोगे, पहली बात सिंपल अगर करोगे तो आप कोई इटरेटर यूज़ करोगे, राइट, कि यूज़र स्टोर के अंदर जाओ, हर एक ऑब्जेक्ट को लेके आओ, उसके साथ यूज़र नेम को मैच करो, मैच करने के बाद उसको आप वापस रिटर्न दो, राइट.
तो सेम थिंग, अभी क्या होता है, कोई भी लिस्ट को, ठीक है, कोई कोई भी लिस्ट को आप स्ट्रीम एपीआई यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू आर यूजिंग दिस इज माय कलेक्शन, कलेक्शन डॉट स्ट्रीम, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम मतलब आपको एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्ट्रीम करेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हो कि मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ, ठीक है। फ़िल्टर किस बेसिस से करना चाहते हो, फ़िल्टर इज़ लाइक, फ़िल्टर एक्चुअली आपका ये जो है, दिस इज़ वन लैम्डा आई एम यूजिंग, डोंट गो कंफ्यूज बाय द नेम और डोंट गेट वरीड बाय द नेम। लैम्डा, लैम्डा का पर्पस सिंपल है, ये फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं इसको। सो इसमें एक ही मेथड है प्रेडिकेट का, मतलब इसमें जो भी ये समझ लो, ये जो है ये क्लास है, क्लास का एक ही मेथड है, ठीक है। एंड उस मेथड में सिर्फ आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन है कि आपको यहाँ से ट्रू या फॉल्स निकलना है, मतलब दिस शुड गिव मी द ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो फिल्टर में मैंने क्या किया, फिल्टर में मेरे को स्ट्रीम से क्या मिलेगा, एक एक यूज़र मिलेगा, उस यूज़र का मैं गेट यूज़र नेम इक्वल्स टू दिस इज़ माई यूज़र नेम, अगर किसी के साथ मैच होता है तो उसको रखो, ठीक है। तो ये फिल्टर स्टेप रन होने के बाद जिसके साथ यूज़र नेम मैच होगा वो रह जाएगा। अभी देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि मल्टीपल यूज़र नेम के साथ मैच हो सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ योर डेटाबेस। इसीलिए हमने क्या किया, फाइंड फास्ट पहला वाला लो। फाइंड फास्ट जब कॉल करोगे सो इट विल गिव यू ए ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑप्शनल। ऑप्शनल का पर्पस क्या है, ये आई कैन एक्सप्लेन यू लेटर, राइट, बट इट्स जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब तुमको यूज़र दिया, यूज़र के ऊपर एक रैपर बना दिया कि ऑप्शनल ऑफ यूज़र। सो अगर ऑप्शनल में कैसा होता है कि ऑप्शनल अगर यूज़ करते हो तो आपको प्रोग्राम नाल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आता है, तो यू कैन जस्ट टेक ए लुक कि उस ऑप्शनल के अंदर कुछ है कि नहीं है, अगर नहीं है तो ठीक है, विल नॉट टेक इट, बट ऑप्शनल विल नॉट बी द नल। ऑब्जेक्ट माइट बी नल, ऑप्शनल के अंदर नल हो सकते हैं, ऑप्शनल का भी नल नहीं होता है। तो ऑप्शनल से ऑब्जेक्ट को निकालना है तो गेट मेथड यूज़ करना है। सो दिस इज द गेट मेथड। इज इट टू मच? स्ट्रीम एपीआई यू कैन जस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जावा 8 का जो स्ट्रीम एपीआई यूज किया, जिनका क्लियर है ना, आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल है। समरेश, गौरी, क्लियर है? स्नेहल, ठीक है। तो अभी हाँ, हाँ, एट द रेट बिन में कहाँ पे? आई कम दैट पॉइंट, आई कम दैट पॉइंट। तो अभी मैंने इसका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन दिया कि मेरे पास ये यूज़र राइट यूज़र स्टोर है, राइट, दिस इज माय कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, राइट, एंड दिस इज द थिंग्स, राइट। अभी 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 जस्ट लिखा मैंने, क्लास लिखा, अभी इसको मैं यूज़ करूँगा, ओके, ओके, ठीक है, लेट्स गो। तो मेरे पास एक यूज़र डिटेल सर्विस हो गया और एक सिक्योरिटी यूज़र डिटेल्स हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सिक्योरिटी कन्फिग में जाके ये सब को उड़ा दूंगा, ये हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए, आई कैन डू इट बाई माई ओन, मैं खुद कर सकता हूँ। तो अभी क्या करते हैं, आप सिक्योरिटी यूज़र बनाते हैं पहले, ठीक है। ये भी आप डेटाबेस के साथ कर सकते हो इजीली, कोई भी आपका जस्ट उसको 3 फील्ड को स्टोर करना है, बट अभी इन मेमोरी करते हैं। सिक्योरिटी यूज़र 1 इज इक्वल टू, अभी क्या है कि न्यू सिक्योरिटी यूज़र का हमने कंस्ट्रक्टर दिया जिसमें हमको क्या देना है, सिर्फ यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है, ऑथोरिटी देना है। नाउ आई विल गिव यूज़र 1, राइट, आई विल गिव 1 2 3 4 5, देन आई विल गिव रीड, ठीक है। अभी मैं यूज़र 2, ठीक है, अभी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा which is extending user details, which
which is extending user details, that is a new array list. Then sorry, एक काम करते हैं, लिस्ट यहाँ पे मैं जेनेरिक्स नहीं लेते हैं क्या, सॉरी नहीं चलेगा। ओके, नाउ दिस इज माय लिस्ट, मैंने लिस्ट बनाया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस का एक इम्प्लीमेंटेशन लेना है। कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस इज इक्वल टू न्यू कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, एंड मैं इसमें लिस्ट पास कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है कोई नहीं, कंस्ट्रक्टर दे देता है, जेनरेट कंस्ट्रक्टर, अभी मैं पास कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस आ गया, मैं इसी को रिटर्न कर दूँगा। गुड, गुड टू गो, सही है। किसी को कोई क्वेश्चन है? अभी इसको रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। अभी 4 मिनट है, अगर चलेगा तो अच्छा है, नहीं चलेगा तो पता नहीं, कल देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी, वो 5003, अभी पहले नोट से जाते हैं। v1 hello fail हुआ 401, then I will give the basic auth, I need to give the user 1, let's send it, yes it ran, clear है। ठीक है, अभी कल से हम इसी को एक्सपांड करते हैं। अभी हमने क्या क्या किया, सो लेट्स कम बैक टू दैट स्लाइड, देन यू विल गेट द अंडरस्टैंड। ये जो फ्लो है हमको पूरा समझना है, इसमें से हम ये दोनों समझ गए, राइट, ये समझ में आया, राइट, यूजर डिटेल सर्विस एंड पासवर्ड एनकोडर, ये दोनों समझ में आ गया, राइट, हाउ टू प्ले विद दिस। इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूजर डिटेल्स एंड यूजर डिटेल सर्विस। आप उसका खुद की इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो, JDBC डेटा सोर्स यूज कर सकते हो, एंड यू कैन use the default implementation what Spring Security is providing। पासवर्ड इनकोडर के लिए हमने अभी तक कुछ किया नहीं, सब जगह नो ऑफ पासवर्ड यूज किया, नो ऑफ पासवर्ड इनकोडर यूज किया। ओके, देन tomorrow we will go with the authentication provider, authentication manager, authentication filter, security context। अभी ये सब सोचना नहीं है, अभी ये जो चीज़ है ये आप कोड देख के एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन प्ले विथ योर ओन कि कैसे करना है, दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। ओके, लेट्स कनेक्ट टुमारो। ओके, एनी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है, 2 मिनट है अभी भी। यस, नो, नो क्वेश्चन, या तो सब समझ में आ गया या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस इट राइट। इसीलिए छोटा छोटा स्टेप हम आगे जा रहे हैं। सो यू विल गेट द कोड हियर, आई विल जस्ट गिव यू, ये मतलब सेम चीज़ है, ओनली दैट ये मैं पहले फॉर बेसिक चीज़ इफ यू कैन डू, सो जैसे सिक्योरिटी यूज़र की जगह यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे यूज़र है,
और यहाँ पे मैंने शायद कंपोजिशन यूज़ किया, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर थिंग। ये HTTP वाला है, ये सॉरी JDBC वाला है। और बाकी जो है कस्टम यूडीज में जाते हैं। ओके यहाँ पे मैंने सिंपल कंपोजिशन यूज़ किया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग आई जस्ट यूज ए यूज़र। देख लेता हूँ कि इफ़ यू कैन यूज़ दिस कॉन्फ़िग में। ओके बहुत कुछ है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने कोड किया ना इसको मैं अपलोड करूँगा विथ सेपरेट, सो यू विल कैन अंडरस्टैंड। इसमें बहुत कुछ और है जो हम कल करने वाले हैं। ये जो कोड है ये इसी को मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। ये दोनों सेम कोड है, सो यू कैन टेक ए लुक एंड यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। ऑल गुड? बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया कि ठीक है? ओके, डू सम स्टडी सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। जो भी है मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बट ये जो है इसका थोड़ा ये देख लो। एंड सेकेंड थिंग इज लाइक जस्ट जस्ट गिव मी द फीडबैक, मतलब थोड़ा स्लो जा रहे हैं, थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, या थोड़ा फास्ट जा रहे हैं थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। एंड लॉट्स ऑफ टॉपिक, बट मैं देखो सिंपल चीज़ है, अभी ये जो हम कर रहे हैं ना ये कहीं पे यूज़ नहीं होता है अभी, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे यूज़ नहीं होता है। बट इफ़ यू डोंट नो द स्मॉल थिंग यू कांट इमेजिन द बिग थिंग। मैं आपको ओ 2.20 या JWT एक दिन में मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और anyone can implement it by looking the code or getting, but you will not get anything from that, ठीक है। सो हियर इज द स्मॉल स्टेप वी आर टेकिंग कि आपको बेसिक स्प्रिंग सिक्योरिटी में क्या करता है, उसके बाद आप कैसे कस्टम यूजर डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो स्प्रिंग सिक्योरिटी के, आप उसमें डेटा डेटा सोर्स कैसे कर सकते हो, देन आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, देन आप कैसे यूज़ करोगे ऑथेंटिकेशन मैनेजर, देन आप सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर क्या यूज़ करोगे। व्हेन वी नो एवरीथिंग देन वी विल अंडरस्टैंड कि ओके ये हो गया पूरा फ्रेमवर्क, अभी चलो इसको OAuth 2.0 में जो प्रोटोकॉल है उसमें कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो स्लो, step by step, but you will get clear understanding each step. Okay, good. कुछ भी क्वेश्चन है आप कभी भी आपका दिमाग में आया, जस्ट यू कैन व्हाट्सएप, राइट, हमारा तो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे टाइप कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, चलो थैंक यू, बाय, सी यू टुमारो।